السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ ریئل اسٹوڈنٹ ہو یا نہیں ہو؟ نہیں, میں اسٹوڈنٹ کو لے کر آیا ہوں. اچھا اچھا, جی جی, تو بہت اچھی بات ہے. کہاں ہے بھائی اسٹوڈنٹ؟ بہت اچھا, کیپ اٹ اپ. کہاں ہے اسٹوڈنٹ؟ کا ہے دلائیے ہم کو بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہماری استقبال ہے آپ کا ہماری اسٹریم میں. شکریہ. جی بتائیے. حضرت سر, کہنا یہ تھا کہ ہماری جہاں تک تحقیق ہے, کم عقلی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں, میں نے تحقیق کی ہے قرآن عظیم کی سورہ لقمان 14 میں ہے کہ ماں کا دودھ چھوڑانا ہے 2 برس میں, 2 سال میں. جی. اور سورہ احقاف میں ہے, احقاف 15, اس میں ہے 30 مہینے میں ماں کا دودھ چھوڑانا ہے. تو میری عقل ذرا کام نہیں کر پا رہی ہے, یا تو ہماری مطالعہ میں گڑبڑی ہے یا پھر ترجمہ میں گڑبڑی ہے. اصل میں آپ کے مطالعہ اور ترجمے میں گڑبڑی ہے. آپ جو ہے جہاں پہ بتا رہا ہوں, وہ آپ جو ہے آیت سامنے جب رکھیں گے تو آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گا. وہاں پہ وہ حملہ و فصالہ دونوں ہے. اس کا بوجھ اٹھانا یعنی اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا. تو وہ جو ہے 24-6-30 یعنی 2 سال جو ہے دودھ چھڑانے کے اور 6 مہینے جو ہے حمل کے, یہ 24-6-30 ملا کر کے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے یہاں پہ. اور جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اس میں دودھ چھڑانے کا ہے, وہ 2 سال اس میں. تو یہ کیسے ہماری سمجھ میں آئے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ بہت کلیئر ہے اس پر صاحب. اس کے مطابق ترجمہ صحیح ہے, آپ کو ترجمہ سمجھنے میں غلطی ہوئی. ترجمہ نہیں غلط ہوا ہے. کوئی اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ترجمہ ہے جہاں غلط ترجمہ کیا گیا ہو اور آپ اس کو لا کر کے سامنے پیش کریں تو ہم بتائیں گے کہ نہیں, آپ نے ترجمہ سمجھنے میں, میرے خیال سے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, کسی مسلک کے عالم نے ترجمہ نہیں غلط کیا. اور اس طرح ترجمہ شاید باید کوئی کرے, کم سے کم سب مسلمان ہیں, تو اس طرح ترجمے میں قرآن میں لوگ نہیں کیا کرتے. ترجمے کو سمجھنے میں آپ سے غلط, اور جس کو آپ تحقیق کہتے ہیں وہ تحقیق نہیں ہے. تو ہاں جی, بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بتا رہے ہیں وہ سورہ احقاف میں ہے 30 شہرن. جی جی جی. اور سورہ لقمان میں ہے فی آ مہینے. تو فی آ مہینے جو ہے 2 سال, اور 30 شہرن 2.5 سال. تو ہم کس کو صحیح سمجھے, دونوں صحیح ہے یا پھر ایک؟ بھائی میں بتایا, آپ دھیان سے سنے نہیں. فی آمین 2 سال, ایک بار اور بتا دے رہا ہوں مختصر میں. فی آمین 2 سال, تو وہ 2 سال کلیئر ہے. جہاں 30 مہینہ دیا ہوا ہے 24-6-30, وہ حملہ و فصالہ, وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا. اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا دونوں 30 مہینہ. اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی 2 چیز کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. حمل کی مدت کو اور دودھ چھڑانے کی مدت کو, دونوں مدتوں کو ایک ساتھ 30 مہینہ ذکر کیا گیا ہے. تو اب قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں آمین 2 سال دودھ چھڑانے کی مدت ہے, تو اس 30 مہینے میں سے 2 سال نکال لیے تو 24 مہینہ, تو بچا 6 مہینہ. تو 6 مہینہ حمل کے کھاتے میں گیا. گویا حمل کی جو ہے کم سے کم ٹائم 6 مہینہ ہے. یعنی حمل کی جو سب سے چھوٹی مدت ہوگی وہ 6 مہینہ ہوئی. اسی آیت سے بھی ثابت ہوا کہ حمل کی سب سے چھوٹی مدت 6 مہینہ ہوئی. اچھا جی, تو یہ تفسیر یہ عبارت تو نہیں لکھی ہوئی ہے وہاں حمل کی؟ نہیں لکھی ہے بھائی, حملہ و فصالہ دیکھ لیجیے آیت نا آپ. حمل لکھی ہوئی ہے عربی میں. ہاں وہ قرآن کی آیت. زید بھائی سمجھا دیجیے ذرا سا قرآن کی آیت لا کے سامنے. یہ بتاؤ جی, یہ سوال میں آپ اس کے بعد کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بولیے. کہنا یہ ہے کہ ہم ذرا گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. اس لیے گمراہی کا شکار ہوگی کہ ایک جگہ ہم نے مطالعہ کیا 2 سال. تو یہ علی مرزا کیوں لکھا بھائی آپ نے؟ اس کا علی مرزا سے کیا تعلق اس طرح کے سوالات کا؟ جی, یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. آپ علی مرزا کا ٹائٹل لگا کے یہ عجیب غریب سوال کر رہے ہیں آپ. کیا علی مرزا بھی تو میرے خیال سے سمجھ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا بھی یہ سب تو موقع نہیں ہے.
मैं मेरा नाम मोहम्मद नहीं, ये शागिर्द है अली मिर्जा के, इससे पहले भी आए हैं ना। वो जो अरकान ईमान वाला सवाल हुआ तो यही भाई से हुआ था। ये भाई हैं अली मिर्जा के शागिर्द, वो अलग बात है। अरकान ईमान वाला सवाल जो मैंने किया था, ये भाई ही थे ना, उनसे सवाल किया था ईमान के कितने अरकान। ये जिस मोबाइल से हम कर रहे, जिनका मोबाइल है, वो बोले हैं कि अगर आप अपना नाम बताइएगा तो वो लोग जल्दी लाइन पर नहीं देंगे आपको, आप उनका नाम बताइएगा तो जल्दी से लाइन मिल जाएगा। इसलिए नाम है। उनसे कुछ ताल्लुक है आपका कि नहीं है? किससे? अली मिर्जा, जानते हैं आप अली मिर्जा को? हाँ जी, उनको जानते हैं हम, उनका समझ लीजिए शागिर्द ही हैं। अच्छा, तो वो शागिर्द जो है ना, तो सवाल का जवाब जो आपको बताया गया ना, देखो दो अलग अलग चीजें बात हो रही है। अगर कोई कहे भाई जैसे मुंबई से दिल्ली पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं और मुंबई से पूना पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, तो बोले क्या बात है, आपने 5 घंटे बोले, फिर 24 घंटे बोल दिए, तजाद हो गए, तो दो चीज टकरा गई। भाई दो अलग चीज बात हो रही है। मुंबई से पूना अलग बात हो रही है, मुंबई से दिल्ली अलग बात हो रही है। तो वहां पहली आयत जो आप बता रहे हैं उसमें हमल की मुद्दत दी गई है, और दूसरी जो आयत बता रहे हैं आप, उसके अंदर हमल के साथ दूध पिलाने की सॉरी, पहली आयत के अंदर सिर्फ दूध पिलाने का जिक्र है, और दूसरी आयत के अंदर दूध पिलाने के साथ जो हमल की कम से कम मुद्दत है वो जिक्र है साथ में। उस तरह से 30 महीने हो रहे हैं, समझे आप। और हमारे पास कुरान समझाने के लिए कौन आए थे? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें समझाया जिसमें कोई शक बाकी नहीं रहता है कि दूध पिलाने की मैक्सिमम मुद्दत क्या है, और उसके बारे में डिटेल्स मौजूद है। तो मैं आपको क्या कहता हूं, आज आप आए हो तो क्यों ना अली मिर्जा से आपने जो सुना सीखा, उसमें कौन सा सबसे खतरनाक सवाल आपके जहन में है? या देखो उसने जो सहाबा पे एतराज उठाया है तो हमने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से कोई ऐसी चीज है जिसको मैं चाहता हूं आप जान करके पहचान सको कि ये इंसान एक बहुत ही गुमराह इंसान है, अली मिर्जा, और उसने लोगों को गुमराह किया है। आपके लिए वाजे हो जाए, हम चाहते हैं आपके लिए हिदायत की चीज है ये आपको बात समझ में आ जाए, आज आप ये लेकर जाओ जी। वो हमारे उस्ताद मोहतरम जो है अली मिर्जा है, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा वो 2.5 साल बताते हैं दूध छोड़ाने की मुद्दत, और जबकि कुरान 2 साल बताता है। तो हमने यही सोचा कि अली मिर्जा साहब या तो फिर गलत बोल रहे हैं, यहाँ तो 2.5 साल भी लिखा हुआ है, तब तो इमाम अबू हनीफा है, गलत है। जी गुमराह है, गलत है, उसका मतलब ये नहीं कि हर मसला जो बताए गलत है। कोई चीज सही, गुमराह इंसान भी सही बात बोल सकता है, हाँ, लेकिन हम क्या देखते हैं उसका जो तरीकेकार है, जिस तरह से उसने लोगों में सहाबा के लिए नफरत भर दी, और लोग यहाँ पे आते हैं पूरे नफरत से भरे हुए आते हैं सहाबा इकराम में से, बाद सहाबा के ताल्लुक से, और ये चीज बिल्कुल गलत है। जिनके बारे में अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम कहा, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने तारीफ की कुरान में, और ये लोग इस बारे में जो बात करते हैं, लान तान करते हैं, अल्लाह की पनाह। तो हम चाहते हैं कि आपको अगर कुछ इस तरह प्रॉब्लम हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए इंशाल्लाह, जो हमने हमारे इख्तिलाफ का हल यूट्यूब पे खास अली मिर्जा की प्लेलिस्ट रखी है। मेरे ख्याल से अभी 100 वीडियो हो गए होंगे उसके अंदर, जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। देखिए आपने उसमें से कुछ थोड़ा टाइम निकाल के जरूर देखिए। नहीं, हमारे पास तो लिंक नहीं था, ये आज जिनका मोबाइल से हम बात कर रहे हैं वो लिंक दिए। जिनका मोबाइल भाई आप ऐसा करिए, जरा प्लीज प्लेलिस्ट इनको फॉरवर्ड करिए ताकि वो देख सकें। आप होम पेज पे जाएंगे, जरा एडिटर जरा प्लेलिस्ट डाल दो भाई, चैट में डाल दो, आप देखिए जरा। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया आप आए, आगे बारकल्लाह फीक। पर मैं जवाब से मुतमईन नहीं हो पाया। अरे लेकिन ये बताओ क्या मुतमईन नहीं हुआ, पहले बताओ, दोनों आयत स्क्रीन पे लाके बताओ मैं आपको। हम किसे सही समझे, मतलब 2.5 साल सही है उस पर रहें, या 2 साल सही है, या दोनों सही है? 2 साल सही है, क्योंकि जहाँ 2.5 साल दिया है वहां पे दो चीजें जिक्र, एक चीज नहीं जिक्र है, हमल यानी प्रेगनेंसी भी जिक्र है और दूध पिलाने का भी जिक्र है। अच्छा। और जहां पे 2 साल दिया है वहां सिर्फ दूध पिलाने का जिक्र है। अच्छा जी। तो 2 साल में ही दूध छोड़ाया जाए, 2.5 साल में नहीं? 2 साल मैक्सिमम मुद्दत है वो, 2 साल। तो 2.5 साल अगर कोई हमको दिखाए तो, कि देखिए 2.5 साल भी है सूरह काफ में, जहां पे 2.5 साल है वहां पे सिर्फ हमल, वहां पे सिर्फ ये दिया है दूध पिलाना। हाँ, उस आयत से किसी ने, देखिए जो आप कह रहे हैं ना, उससे किसी ने दलील नहीं पकड़ा, कोई उस आयत को नहीं दिखाता, कोई उस आयत को नहीं दिखाता कि देखिए ये 2.5 साल लिखा हुआ। आपको ये 1-2 नाम बताइए मुझे कि आप कोई बताता है कि वो हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा को दलील के तौर पर पेश करता है कि 2.5 साल। इवन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस आयत को दलील के तौर पर नहीं पेश किया। जो भी 2.5 साल का कायल है वो इस आयत को बिल्कुल नहीं पेश करता। बहुत आयत कंफर्म है, बहुत आयत क्लियर है, आप एक बार और जाकर के देख लेना। वह हमलुहु व फिसालुहु, उसका हमल व फिसालुहु, और उसका दूध छुड़ाना सलासूना शहरा 30 महीना है।
एकदम क्लियर। अब कुरान की एक आयत बताती है कि दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल है। अब 2 साल में 24 महीना होता है। अब इस 30 में से 24 निकाल लिए, बचा 6 महीना हमल की मुद्दत हुई। ये किसी ने नहीं कहा कि ये आयत दलील है, किसी ने नहीं कहा ये आयत दलील है। आप कह रहे कोई के, मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं कहा कि ये आयत, ये तो कहा है कि 2.5 साल, लेकिन ये नहीं किसी ने कहा कि ये आयत दलील है उस मसले के लिए। इसलिए आप जाके क्लियर दोबारा थोड़ा पढ़ लीजिए, मुतमईन हो जाएंगे। जी अबू ज़ैद भाई, या तो आयत लगा करके आप समझा दीजिए, आयत लगा के थोड़ा सा मुतमईन हो जाए भाई। जरा बाद में जाके वीडियो देख लेंगे ना, इंशाल्लाह आयत खोल के पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ शुक्रिया भाई।